So worked in a company software developer as a software developer for 2 years. Okay, एक साल निकल गया, ठीक ठाक लगा, पर दूसरे साल बोर होने लग गया एंड ये रियलाइज हुआ कि सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम आई डोंट सी माई सेल्फ डूइंग फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ. Many of you are anxious that I have gap years in my CV. I have 1 year gap, 2 year gaps for UPSC preparation. I have changed multiple jobs. I have very high work experience. So I was also in the similar boat, high experience. I had around 3.5 years of experience, and I also had multiple, I changed 5 jobs. Hello everyone, welcome back to my channel, All Sorted, and this video is going to be another honest talk, which I'm going to share the things which I haven't shared before in this. Right, I've changed 5 jobs before my MBA interviews. This is crazy, right? People just normally do one job when they are having a work experience. They work for 2 years or 3 years, and then they go for an MBA. Maximum one firm or 2 firms. Maximum 2 firms a person can have. But I have changed 5 jobs. Okay, in my resume there were 5 different names before I went with the MBA interviews. I went ahead with doing my BTech from VNIT Nagpur, which is National Institute of Technology, and I did my BTech in Electronics and Communication. 2 साल निकल गए, 3 साल निकल गए, चौथे साल में भी there was confusion. Obviously मेरे मन का ब्रांच नहीं था इलेक्ट्रॉनिक्स. Most of the folks like you, we chose specialization looking at the scope. Mechanical is evergreen, electronics is booming. Final year, everyone was deciding to go for CAT, or they were going for GRE, MS, MBA, MTech, और अपने को कुछ पता नहीं था क्या करना है. सो डिसाइड किया कि यार जॉब करते हैं 2 साल, एंड थोड़ा सा MBA की तरफ इंक्लिनेशन था. सो सोचा कि 2 साल जॉब करके MBA का तैयारी करेंगे, कैट देंगे. मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिक लग रहा था, मुझे घुटन हो रही थी अंदर कि लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि 5 साल के बाद हम टेक लीड बन जाएंगे, फिर ऑन साइट जाने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा. And I wasn't getting excited by the folks around me, what they were talking, that they want to go on site, और करना क्या है, वही कंप्यूटर पे काम करना है, कोडिंग करना है. So जिसको अच्छा लगता है, there's nothing, I'm not saying against them, but for me this video is regarding me. मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कोडिंग का जॉब. मैंने डिसाइड किया कि यार ये मैं जिंदगी भर नहीं कर सकता, एक जगह बैठ के कंप्यूटर के सामने अपने से काम नहीं होने वाला है. भले ही आप पैसा कितना दे दो, बट आई एम नॉट गोइंग टू लिव सच अ लाइफ. सो सेकेंड ईयर 2 साल हो गए सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम करते करते. कैट का तैयारी शुरू कर दिया. आफ्टर 2 years ऑफ वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, मन में ये ख्याल आया कि वाइल डूइंग इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स तो ऐसे ही ले लिया था. बट ये सबक मिल गया था कि आई हैड चोजन इलेक्ट्रॉनिक्स बिकॉज पीपल टोल्ड मी दैट इट इज गुड, इट हैज गुड स्कोप. And now people were telling me, do finance MBA, do this kind of MBA from IIMs, top IIMs, and your life is set. But going to the topmost engineering college, NIT, and ये सपना लेके कि एक बार आप NIT में जाओगे, आप सेट हो जाएगा लाइफ. सो आई न्यू कि MBA में जाके भी लाइफ सेट होने नहीं वाला है. इट वॉज अ ब्रांच विच वॉज हैपनिंग, विच वॉज कूल इन पीपल्स आइज, सोसाइटीज आइज. फाइनेंस में, कंसल्टिंग में, उसमें जाओ, पैसा ज़्यादा है. बट आई वॉन्टेड टू मेक एन इन्फॉर्म डिसीजन. सो आई थॉट कि भाई डायरेक्टली मैं ऐसे ही कॉलेज में नहीं जाने वाला हूँ. एंड बिकॉज वंस यू गेट इन द कॉलेज, यू गेट इन टू दैट रैट रेस, वॉट एवरीबडी इज चूजिंग, देन यू टेंड टू चूज दैट. यू गेट बायस्ड बाय अदर्स अराउंड यू, वॉट ओपिनियंस दे हैव, बिकॉज यू डोंट हैव योर माइंड ऑफ योर ओन, योर चॉइस ऑफ योर ओन आपने नहीं किया है. सो आई वॉन्टेड टू मेक एन इन्फॉर्म डिसीजन इन MBA एंड नॉट रिपीट द मिस्टेक ऑफ इंजीनियरिंग. So I decided to experiment. I decided कि 1 साल में I'll do multiple jobs. I'll do internships and try to find out where I'm good at and what inclination do I have. After 2 years, I knew my inclination is towards marketing or HR, and this was by eliminating the options. Finance नहीं करना है. फिनेंस मैंने लोगों से बात किया, उसके बारे में बहुत पढ़ा, ऐसे ही रैंडमली नहीं किया. ओके, आई टुक मल्टीपल पर्सनालिटी टेस्ट, मेरे से क्या मैच हो रहा है, कौन से जॉब में मैं फिट बैठ रहा हूँ. सो फाइनेंस आउट था. कंसल्टिंग, पीपल वर बर्निंग आउट. आई वॉज नॉट रियली इंटरेस्टेड कि कंसल्टिंग लॉन्ग टर्म में नहीं होगा, फाइनेंस नहीं होगा. ऑपरेशंस में भी इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था. ओके, बचा था मार्केटिंग, जनरल मैनेजमेंट और HR. Okay, marketing or HR was mostly my inclination towards, because it being I felt I'm a people's person at that time, and I had that good communication skills, and I wanted to work around people rather than machines, and influence them and make some impact on people. I loved psychology. I love understanding of the human mind, and marketing involves understanding psychology. HR involves understanding psychology, and I also wanted something creative where I can make an impact, where I can design something of my own from scratch, design some programs that I can run. So I could do that in marketing and also in HR.
Marketing was more of a client facing, outside facing, bringing revenue. HR was more of an inward facing, your employees are your customers and you are doing for bettering their life. So एक इंक्लिनेशन तो था HR की तरफ, बिकॉज हियर आई एम इम्पैक्टिंग पीपल एंड इम्प्रूविंग देयर लाइव्स, एंड मार्केटिंग में भी था बिकॉज क्रिएटिविटी आई थॉट ज़्यादा होगा उसमें. But so then I started thinking कि I'll do some internships in marketing. Okay, cut to after 2 years I resigned from my job. Okay, I left my job of software developer. I took a leap of faith. बोला एक साल एक्सपेरिमेंट करते हैं, अलग अलग इंटर्नशिप्स करते हैं. और आई थॉट फुल टाइम इंटर्नशिप वर्क एक्सपीरियंस ही काउंट होगा. सो देयर इज नो, आई थॉट एक या दो इंटर्नशिप मैक्सिमम मैं करूंगा, बट आई वेंट ऑन डूइंग 5 different kind of jobs. So I'll tell you that now. Did my first digital marketing internship because I thought उसमें मेरा इंटरेस्ट है मार्केटिंग में, in a firm called firstcry.com. firstcry.com में गया, 3 महीना डिजिटल मार्केटिंग में इंटर्नशिप किया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO पे काम किया. किया पर वापस लगा कि नहीं यार, ये भी डिजिटल मार्केटिंग इतना मुझे पसंद नहीं आ रहा है. अगेन ये बैठने वाला जॉब है एंड इट इन्वॉल्व्स, मतलब आप रियली कुछ, मुझे इतना एक्साइटिंग नहीं लगा जितना बाहर से लग रहा था कि भाई डिजिटल मार्केटिंग तो क्या है, इट्स द फ्यूचर. एवरीवन वाज सेइंग भाई एवरी फर्म, एवरीथिंग इज गोइंग ऑनलाइन, डिजिटल मार्केटिंग इज द नेक्स्ट हैपनिंग थिंग. बट looking at the people around me in the office, what they do, what projects they do, digital marketing again was not that interesting. मैंने सोचा ये e-commerce में शायद मेरा इंटरेस्ट नहीं होगा. I did my second digital marketing cum marketing internship in second firm called Architron. So Architron में मैं गया, उसमें मैंने again इस पे काम किया. We had a product there. It was a startup. So I again worked as an I used to write creative blogs for them. I used to do digital marketing का जो मैंने सीखा था first time में, I used to do that also. It was kind of a mixed sales and digital marketing and blogging kind of a job. Again 3 months का internship वहाँ पे किया. अगेन वहाँ पे लगने लगा कि नहीं, इतना मजा नहीं आ रहा है. ओके, अभी हो गया था भाई कंफ्यूजन कि लग रहा था कि मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, बट ठीक है चलो, लगा कि ये सब डिजिटल मार्केटिंग में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मे बी सेल्स में मुझे इंटरेस्ट होगा, राइट. हार्डकोर सेल जो बोलते हैं, ऑन द ग्राउंड जाके क्लाइंट से मिलो, बेचो, माल बेचो, रेवेन्यू लाओ एंड वेरिएबल पे होगा, आपको एक्साइटमेंट टारगेट्स होगा. तो लगा कि भाई चलो स्ट्रीट स्मार्ट है, कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए, तो सोचा शायद सेल्स में भी मजा आ सकता है. सो माय थर्ड जॉब आई चेंज्ड आफ्टर Architron was in a firm called IEEE. So IEEE, अगर आप इंजीनियर हो तो आपको पता होगा, IEEE पब्लिकेशंस होता है जिसका एक्सक्लूसिव, देयर आर मैगजीन्स, IEEE मैगजीन्स. बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजेस 30-30 लाख का सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं IEEE का, सो दैट PhD स्टूडेंट्स, MTech स्टूडेंट्स कैन publish their papers and you can see other published papers in IEEE. I worked in IEEE as a business consultant. Business consultant was my profile, but it was more of a sales, on the field sales job. तो इसमें करना क्या था कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे महाराष्ट्र के, अराउंड मोर देन 100+ इंजीनियरिंग कॉलेजेस. आई यूज्ड टू गो इन द इंजीनियरिंग कॉलेजेस, पिच आवर प्रोडक्ट. IEEE का सब्सक्रिप्शन होता था, अलग अलग पैकेजेस होता था. आई यूज्ड टू हंट फॉर न्यू कस्टमर्स एंड ऑल्सो रिटेन द न्यू कस्टमर्स बाय विजिटिंग द लाइब्रेरियंस अक्रॉस द इंजीनियरिंग कॉलेजेस. सो आई पुणे में गया, महाराष्ट्र में आई हैव visited a lot of engineering colleges. So in total I have visited 118 engineering institutes in Maharashtra. Personally जाके कॉलेज में जाके पिच करके, sales pitch करके, I used to pitch our product, give presentations. So now in sales job I used to like some aspects of the sales job. आई डिडंट लाइक द ट्रैवलिंग पार्ट. मुझे लगा था कि मजा आएगा ट्रैवल करने में, मार्केटिंग में बहुत ट्रैवलिंग होता है, बट आई रियलाइज कि यार अगर आप काम के लिए ट्रैवल कर रहे हो तो आपके माइंड में वही चलता रहता है, तो इट्स वाज नॉट दैट एक्साइटिंग. अगेन ये मिथ क्लियर हुआ कि यार ट्रैवल करने के लिए मार्केटिंग का जॉब नहीं करना है. एंड देन ये रियलाइज हुआ कि सेल्स में देयर आर लॉट ऑफ टारगेट्स, क्वार्टरली टारगेट्स, इट्स ऑल अबाउट नंबर्स. क्रिएटिविटी एक पॉइंट के बाद निल हो जाता है, इट्स ऑल अबाउट ट्रीटिंग द कस्टमर. एंड फोर्थ कंपनी आई लेफ्ट दिस कंपनी IEEE. देन आई जॉइंड बायजूस. ओके, बायजूस के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा, हाउ माय एक्सपीरियंस वाज देयर इन बायजूस. इट वाज पैथेटिक, ओके, इन वन वर्ड. सो बायजूस में मैंने एज अ बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट काम किया फॉर अगेन 3 months. सो आई वांटेड टू ट्राई कि एजुकेशन सेक्टर में इट वाज इंटरेस्टिंग, एजुकेशन सेक्टर में अपना इंटरेस्ट भी था. सो अगेन आई वी ट्रेन्ड इन बैंगलोर फॉर अराउंड 3 to 4 weeks. Then I went to Mumbai, and Mumbai we used to sell the Byju's products to different clients. We used to call them, we used to set meetings on weekends, Saturday Sunday meeting लेके, झूठ बोल के, ये मैं वीडियो बाद में डिटेल में बताऊंगा Byju's का, ऑलरेडी मैंने लास्ट टाइम बताया था एक वीडियो में. सो इसमें रियलाइज हुआ कि यार सेल्स इज नॉट समथिंग विच आई एम एंजॉइंग. सेल्स में आई थॉट द पीपल हु आर अराउंड मी, आई एम नॉट जेलिंग वेल विद देम. दे आर बहुत ही कट थ्रोट
चीज़ें हैं। आपका मैनेजर आपसे कभी खुश नहीं होता है। आपने टारगेट अचीव किया तो उसका एक्सपेक्टेशन 2x हो जाता है, 2x किया तो 4x हो जाता है। इट्स ऑल अबाउट नंबर्स। आप नंबर्स ला रहे हो, कैसे भी करके लाओ, झूठ बोलो, ये भी एक हार्ड फैक्ट है। बिजनेसेस, especially Byju's, I can literally talk about what I was telling to the parents. I was not really convinced कि यार मैं झूठ बोल के I don't want to set up meetings and calls. एंड वो रात को मुझे नींद नहीं आती थी ठीक से। एंड जब तक टारगेट पूरा ना करो आप घर नहीं जा सकते हो। सो 9 to 9 आई यूज टू वर्क अराउंड 12 hours, 13 hours. And this was not just the case with me. My managers के managers were working in the same way. And it was all about numbers. ये अचीव करना है, वो करना है, सेल्स टारगेट अचीव करना है। तो भाई लगा, तो बायजूस के बाद तो सेल्स से पूरा नफरत हो गई थी। आई स्टार्टेड हेटिंग सेल्स लिटरली आफ्टर बायजूस, एंड आई वाज कन्विंस्ड कि सेल्स एंड मार्केटिंग में जॉब नहीं करना है। ओके, तो बचा था एचआर बचा था। एचआर के बारे में और थोड़ा इन्फॉर्मेशन निकाला, रिसर्च किया, लोगों से मिला, एलम्स से मिला, जो भी डैड के फ्रेंड्स थे एचआर फील्ड में, जाके उन कंपनीज में एचआर से मिला, जाना लगा कि यार इसमें मेरा इंक्लिनेशन पहले से ही था। एंड एचआर का काम मुझे इम्पैक्टफुल लगता था, कॉन्ट्ररी टू डिफरेंट ओपिनियंस। बट आई ऑल्सो थॉट कि एचआर आर नॉट वेल रिस्पेक्टेड, मे बी इसमें जाऊँ कि नहीं जाऊँ। बट आई थॉट एचआर को एज अ हम पक्का एक चॉइस रखते हैं, एंड मार्केटिंग सेल्स में मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। सो डिसाइड किया कि भाई एमबीए करते हैं। अभी फाइनली कैट में साइमल्टेनियसली हर साल दे रहा था। सो कैट के अटेम्प्ट्स मैंने शुरू कर दिए थे इन माय सेकेंड ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। सो अभी तक 2 कैट के अटेम्प्ट हो चुके थे। अभी डिसाइड किया था, ऑलमोस्ट 3.5 साल का एक्सपीरियंस अभी हो गया था। 1.5 साल मैंने बहुत ये सब जॉब चेंज किए, 3-4 जॉब्स। आफ्टर बायजूस आई ऑल्सो ज्वाइन वन मोर फर्म। ओके, जस्ट मस्ती में इट वॉज कॉल्ड कोक्यूब्स। कोक्यूब्स में अगेन एजुकेशन सेक्टर में सेल्स वाला जॉब था। सो सेल्स का काम करके पता चल गया था यार मोर और लेस क्या जॉब होता है सेल्स का, एंड मुझे नहीं करना है लॉन्ग टर्म के लिए। मेरी बहुत सारे एग्जाम्स दिए एमबीए के, एंड अच्छे सारे कॉलेजेस में हो गया। आई एम लखनऊ, IIT दिल्ली, नीटी मुंबई, टिस मुंबई, SIBM पुणे, ऑल न्यू IIMs। एंड यहाँ पे मेरे पास था चॉइस, अभी चॉइस था कि मैं कुछ भी फील्ड चूज कर सकता हूँ। एंड फाइनली आफ्टर लॉट ऑफ थिंकिंग, इतना आसान नहीं था, पीपल वर सेइंग समथिंग एल्स कि ये जा, इसका टैग अच्छा है, इसमें बेटर ये है, इसका ब्रांड नेम अच्छा है। मैंने सब छोड़ छाड़ के हार्ट का डिसीजन लिया एंड वेंट अहेड विद टिस मुंबई। टिस मुंबई वाज अगेन वन ऑफ माय टारगेट कि एचआर करना है तो टिस से करना है। फीस कम है, ROI जबरदस्त है, जॉब्स अच्छे हैं, टिस का कल्चर बहुत अच्छा है। आई लव दैट प्लेस, मैं विजिट करके आया था। And finally, I chose TIS Mumbai, and I'm very happy with my choice. And HR as a career is perfectly suitable for me. I love this field. I love psychology. I love creativity, and I'm getting to use those skills in my day-to-day job. That's what matters the most. ओके, सो कॉर्पोरेट में भाई मुझे एचआर में ही करना था, कॉर्पोरेट करियर में। सो नाउ द टेक अवे फॉर यू इज, अगर आपने मल्टीपल जॉब्स किए, आपका वर्क एक्सपीरियंस वेरी हाई है, आपका गैप ईयर्स है, आप सोच रहे हो कि मेरा इंटरव्यू में कैसा परसेप्शन होगा, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने ये ठान लिया था कि ये मेरा डाइवर्स एक्सपीरियंस हो गया है। आई हैव एक्सपीरियंस डिफरेंट फील्ड्स, और मेरे जैसे कैंडिडेट बहुत कम होंगे एमबीए इंटरव्यूज। सो आई यूज दैट टू माय एडवांटेज। मैं इंटरव्यू अगर पूछता था इतने जॉब क्यों किए, आई यूज्ड टू से मुझे एक्सप्लोर करना था, एंड आई वेंट अहेड विद माय हार्ट। ओपननेस टू न्यू एक्सपीरियंसेस इज वन ऑफ द पर्सनैलिटी ट्रेट विच इज कंसिडर्ड गुड। सो आई वाज ओपन टू एक्सपीरियंसिंग न्यू फील्ड्स, आई वाज ओपन टू टेक द रिस्क, एंड मैंने हैंड्स ऑन जॉब करके मैंने फाइंड आउट किया है कि मेरा पैशन क्या है, मुझे किस फील्ड में करना है। सो आगे वाला बंदा भी कन्विंस हो जाता था कि यार इसने कुछ हटके किया है, इसने बस टेक्निकल जॉब करके सीधा एमबीए करने नहीं आया, इसने इंटर्नशिप्स करी है, एंड दिस गाय इज टॉकिंग व्हाट ही हैज एक्सपीरियंस्ड फ्रॉम। ओके, ही इज नॉट जस्ट बुलशिटिंग एनीथिंग, जस्ट रीडिंग इन थियरी, ही हैज वर्क एंड ही इज टॉकिंग व्हाट इज मेकिंग सेंस। सो ये मैंने एज अ प्लस पॉइंट मेरे लिए यूज करा। आपको भी डिसाइड करना है, आपका गैप है, आपका मल्टीपल वर्क एक्स है, आपको हाई वर्क एक्सपीरियंस है, आपको कैसे उसको जस्टिफाई करना है, कैसे आपको वो एज अ पॉजिटिव थिंग दिखाना है, आपने उससे क्या कुछ सीखा है, यूपीएससी प्रिपरेशन से आपने क्या कुछ सीखा है, आपने गैप लेके क्या कुछ अपने बारे में जाना है, दुनिया के बारे में जाना है, फील्ड्स के बारे में जाना है, प्रैक्टिकल आपने क्या सीखा है, ये सब आपको प्रोजेक्ट करना है। एंड सामने वाला बंदा कंफ्यूज नहीं होगा, कन्विंस हो जाएगा, दिस इज माई गारंटी। एंड दिस वॉज द इंटेंशन ऑफ दिस वीडियो। आपका जो भी गैप है या फिर हाई वर्क एक्सपीरियंस है उसको एज अ पॉजिटिव थिंग में कन्वर्ट करो। सोचो आपने क्या क्या सीखा है जो बाकी कैंडिडेट जो नॉर्मल जॉब करके आ रहे हैं या फिर फ्रेशर आ रहा है उससे आप हटके कैसे हो, बिकॉज डाइवर्सिटी इज वन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन एमबीए कॉलेजेस। दे ऑल्सो रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी। अगर आपका डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क एक्स है कि जो भी आपने किया था वो आपके लिए सही साबित हुआ, आपने उससे सीखा है एंड वो आपको एमबीए में हेल्प ही करने वाला है। सो इटली गोइंग टू हेल्प मी इन माई एमबीए ऑल्सो बिकॉज आई वॉज वेरी क्लियर इन माई माइंड हाउ थिंग्स वर्क फॉर मी एंड आई एम श्योर थिंग्स विल वर्क फॉर you as well.
बस खुद पे दया करना छोड़ दो और खुद से प्यार करना सीख लो. I hope this video has helped you. Please like the video and share it and subscribe it to get such more important videos, and please share it to your friends who may benefit from my experience, and this will definitely, I think, help a lot of people. So guys, I wish you all the best. Wait for the next video. Till then, stay all sorted. Bye.